Hello student, a very warm good morning. Today I will going to discuss about a very important topic that is called sense organ. The sense organ, it is a part of the neural coordination and neural structure or nervous system. The sense organ, how many sense organ found in our body? The various type of senses are receive that type of organs. The mainly the 5 type of sense organ found in our body. That 5 type of sense organ. First is eye sense organ. Second is ear sense organ. That third is a nose sense organ. Fourth is a tongue is a sense organ, and fifth is a skin is a sense organ. That is a mainly 5 type of sense organ. Eye sense to the photoreceptor, then ear sense to the phonoreceptor, and then the nose sense to the olfactory receptor, and the tongue sense to the chemoreceptor and touch receptor, and the skin also have many type of sensory structures like sense to the touch, like sense to the temperature, like sense to frigidoreceptor, like sense to the pain receptor. That type of many type of sensory receptors are found in the skin. So mainly आप कह सकते हो 5 या 5 receptors found in our body for according to sense or senses. Today we will discuss about the major sense organ. There are 2 type of major sense organ. First is eye is a major sense organ, that is called photoreceptor, and then second major sense organ is ear. Ear also known as phonoreceptor और acoustic phonoreceptor भी हम यहाँ पर कह सकते हैं ear को. यहाँ तो यहाँ बच्चों हम आई की बात करेंगे आज. द स्ट्रक्चर ऑफ आई and how many eye found in our body and where situation of the eye. So eye is a ball-like structure that is called eye ball. The eye ball is situated the front and anterior part of the body in a orbit-like structure that is called eye orbit. The eye orbit is formed by a bony structure, and the completely eye ball situated inside of the eye orbit, and the small part of the eyeball found front side of the environment. The major part of the eyeball found in the eye orbit. तो स्टेप से बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं. अब यहाँ करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ एक स्लाइड के रूप में हम यहाँ पर एक मैटर के रूप में यहाँ पर लिया है, जो बता सकता है कि किस प्रकार से यहाँ आई की स्ट्रक्चर होती है. तो देखिए आपके सामने बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ एक स्ट्रक्चर आई की दिखाई गई है. अपनी आई भी हम देख सकते हैं यहाँ आपके सामने. ये पूरे का पूरा एरिया बच्चों यहाँ पर क्या है, एक आई का एरिया है यहाँ. तो इसके अंदर देखिए एक यहाँ पर क्या है, ये एक ब्लैक पार्ट है, देन ये पार्ट बच्चों यहाँ पर या व्हाइट पार्ट है, या जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा के नाम से कहते हैं. बॉल की जब स्टडी करेंगे हम बच्चों, तो बॉल को डिवाइडेड यहाँ पर किया गया है. तो बॉल सराउंडेड बाय 3 टाइप ऑफ लेयर. फर्स्ट इज स्क्लेरोइड लेयर, सेकंड इज कोरोइड लेयर, थर्ड इज रेटिना. सामने कॉर्निया यहाँ प्रेजेंट है. तो ये एक आई की स्ट्रक्चर यहाँ हम इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों. आपके यहाँ देखने समझ में आई होगी क्या आई है. इस आई में किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है. तो एक डिटेल स्टडी के लिए हमने एक आई की का डायग्राम, बहुत ही सुंदर डायग्राम लिया है. इसके डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं कि कहाँ कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, कहाँ कौन सी ग्लैंड पाई जाती है. आई के अंदर जो ब्लैक है वो क्या होता है, और इसके बाद में व्हाइट पार्ट है वो क्या होता है. यहाँ आई को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर found surrounding the eye that is protected part of the eye. तो ये सब बच्चों हम यहाँ पर करेंगे. देखिएगा ये हमारी आई देखते हैं, तो ये क्या आईब्रो है यहाँ पर, ये तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आईब्रो है. आईब्रो के नीचे यहाँ पर एक लीड पलक जो होती है, जिसे कहते हैं आई लीड के नाम से जानती हैं. यहाँ आई लीड के ऊपर कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं. इन हेयर को हम आई लेसेज कहेंगे. यहाँ पर ये आई लेसेज के नाम से इसे जानते हैं. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर दी है सराउंडिंग ऑफ द आई. इसके बाद में सम स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड also found surrounding of the eye
that type of gland है. First is a lacrimal gland, second is a lacrimal gland duct. या तो lacrimal gland देखिएगा ये अपर साइड ऑफ द आई, यहाँ जो किनारे पर अपना जो इस एरिया यहाँ ऊपर क्या कौन सी lacrimal gland है ये, जैसे यहाँ क्लाउड जैसी स्ट्रक्चर दिखती है और ये ओपन हो रही है यहाँ पर एक डक्ट से, दैट इज कॉल्ड lacrimal duct. और कंटिन्यू एक वाटर फ्लूइड है जिसे टीयर के रूप में यहाँ पर रिलीज करती रहती है यहाँ. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर दिखाया गया है. एक यहाँ बच्चों ये लेक्रियामल सैक दिखाया गया है जिसके अंदर यहाँ टीयर बनता रहता है. लेक्रिया यहाँ पर भी एक डक्ट के रूप में प्रेजेंट होती है. ये लेक्रियामल यहाँ पर केनाल यहाँ प्रेजेंट होती है और ये लेक्रियामल पिंगटा जो इससे लगातार यहाँ से आंसू है वो रिलीज किए जाते हैं. तो ये आउटर पार्ट ऑफ द आई जो डक्टल पार्ट था यहाँ अंदर देखिए बच्चों यहाँ पर, तो ये बोल है, बोल का केवल 1/5 पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, बाकी पार्ट अंदर है ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर एम्बेडेड है जो बोनी ऑर्बिट है. या इसके अंदर हम देखेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे स्क्लेरा. ध्यान रखना, व्हाइट सफेद, सफेद एस फॉर याद रखिए ऐसे सफेद पार्ट ऑफ द आई, व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, और एस फॉर स्क्लेरा. स्क्लेरा एक लेयर है. आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड स्क्लेरा. इनर लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड कोरोइड लेयर. देन मोस्ट इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना. ये बच्चों हम सब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर, केवल याद रखने के लिए. जो हमारा व्हाइटिश रीजन है, हम हमारी आई को देखेंगे तो व्हाइटिश जो रीजन दिखाई देता है उस व्हाइटिश रीजन को हम स्क्लेरा कहेंगे यहाँ. अब यहां पर इसके बीच में क्या है, प्यूपिल. बच्चों प्यूपिल पाया जाता है. प्यूपिल आइरिस के अंदर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होता है. इसको कवर करने के लिए यहाँ पर ये व्हाइट स्ट्रक्चर और दिखाई गई है, इसे हम क्या कहेंगे, आइरिस कहेंगे. यहाँ प्यूपिल यहाँ सराउंडेड रहता है चारों तरफ से आइरिस से. किस प्रकार है ये, इस प्रकार से एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसे इसके बीच में ये राउंड स्ट्रक्चर है. यहां पर इस प्रकार से ये प्यूपिल है, बीच का प्यूपिल है. अकॉर्डिंग टू लाइट प्यूपिल का साइज है वो या चेंजेबल है. डे के टाइम में प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है और नाइट टाइम में प्यूपिल है वो यहाँ पर ब्रॉड रहता है. तो इस टाइप की एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने रखी गई है, वो आई की स्ट्रक्चर है जो हम लगातार हमारी आई को इस प्रकार से देखते रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पाई जाती है. इसके बाद में कुछ आई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनते हैं बच्चों, देखिएगा. फर्स्ट द साइट और विजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन सर्वाइवल. तो फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, अपने आप को इस एनवायरमेंट में सर्वाइवलशिप करने के लिए साइट और विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक बनता है. यदि विजन नहीं है, यदि ब्लाइंड है, यदि अंधे हैं, तो दुनिया को, इस रंगीन दुनिया को हम नहीं देख पाएंगे और हो सकता है हमारी सर्वाइवलशिप के लिए भी बड़ा खतरा बन जाए यहाँ. इसलिए साइट और विजन इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ, मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन द आई. टोटल सेंसरी रिसेप्टर है इन आवर बॉडी, उसका बच्चों हाफ रिसेप्टर्स विच इज फाउंड इन आवर आई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है यहाँ पर पूछा जाता है. स्पेशली पेन रिसेप्टर, टच रिसेप्टर आर फाउंड एट द कॉर्निया एंड द फोटो रिसेप्टर फाउंड इन द रेटिना. तो मोस्ट ऑफ हाफ रिसेप्टर ऑफ द आवर बॉडी, ऑफ द टोटल बॉडी है वो विच इज फाउंड इन आवर आई. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द लार्ज पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन की बात हमने पढ़ी थी, हमने ब्रेन किया था, उसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स किया था. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैव ए स्पेशल पार्ट फॉर द साइट दैट इज कॉल्ड विजुअल कॉर्टेक्स. द विजुअल कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू द प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन. ओके बच्चों, यहाँ पर लार्ज पार्ट का मीनिंग है यहाँ पर द विजुअल कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू द प्रोसेसिंग ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर होने जा रहे हैं. आवर पेयर्ड आई आर लोकेटेड इन द सॉकेट ऑफ द स्कल दैट इज कॉल्ड आई ऑर्बिट और ऑर्बिट. क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाता है कि आई कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमारे सॉकेट के अंदर, एक बोनी सॉकेट के अंदर यहाँ पर एम्बेडेड रहती है, तो उसके अंदर यहाँ आई पाई जाती है. एडल्ट आई बॉल मेजर अबाउट दी 2.5 सेंटीमीटर. बच्चों ध्यान रखिएगा, 2.5 सेंटीमीटर इज ए डायमीटर ऑफ द एडल्ट आई बॉल.
बच्चों यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे जन्म के बाद में जब ग्रोथ करते हैं तो कुछ मिथ्याएं हैं कि आई बॉल है या आंखें हैं वो कभी भी ग्रोथ नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी ग्रोइंग के साथ साथ यहाँ पर साइमल्टेनियसली आई ऑर्बिट और आई बॉल भी यहाँ पर ग्रोथ करती है। तो बच्चा जन्म लेता है तो उस समय आई बॉल की जो साइज होती है, आई बॉल का जो डायमीटर होता है नियर अबाउट 1.5 टू 1.6 सेंटीमीटर यहाँ पर डायमीटर होता है, लेकिन एडल्ट डायमीटर है वो इंक्रीज होके यहाँ पर फिक्स हो जाता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है फाउंड इन द आई बॉल ऑफ इन द एडल्ट कंडीशन। तो इस प्रकार से आपसे 1.5 कब है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, at the time of birth the diameter of the eyeball is 1.5 centimeter, and after the development, after growing of the body, after growing of the baby, the eyeball diameter is about 2.5 centimeter। तो ये भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें यहाँ की, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द आई? द आई आर फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है यहाँ की कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसमें आई इज ए फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है। एंड ईच आई एंड होलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द आई बॉल। ओके, इस प्रकार की बच्चों यहाँ पर एक कंप्लीट हम आई की स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास में इस प्रकार की एक बॉल मिलेगी आपको, इसको हम कहेंगे होलो बॉल, और इसका केवल इतना सा पार्ट है, ये सामने का पार्ट है, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और इस प्रकार से इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, तो ये जनरली एक हिस्सा इस प्रकार से बनता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये एक आई ऑर्बिट है, इस आई ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसके यहाँ मसल्स इसको है इस कनेक्ट किए हुए रखती है। इसको हम बोलते हैं आई मसल्स के नाम से जानते हैं यहाँ। तो इस प्रकार है आपके यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आई यहाँ प्रेजेंट है। तो जनरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आई बॉल इज सिचुएटेड इन द नोच ऑफ द बोन इन द स्कल, इट इज कॉल्ड द आई ऑर्बिट। तो इसे को हम क्या कहेंगे? ये जहां प्रेजेंट होती है इसका नाम क्या दे दिया गया? आई ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड आई ऑर्बिट। बच्चों बोन से बनी हुई स्ट्रक्चर जिसके अंदर बॉल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आई ऑर्बिट। देन only 1/5 part of the whole eye is seen from outside in the between the eyelashes, and the remaining 4/5 part is in the eye orbit। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फ्रेम किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी की लाइन भी है ये कि कितना पार्ट हमें सामने से फ्रंट से दिखाई देता है आई बॉल का, तो ओनली 1/5 पार्ट है वो आपको दिखाई देगा। रिमेनिंग जो 4/5 पार्ट है आई बॉल का ये हमने दिखाई नहीं देता है। ये इट इज एम्बेडेड इन दी आई ऑर्बिट, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं पूरी की पूरी बॉल है और बॉल का केवल इतना हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, बाकी अंदर यहाँ ऑर्बिट में दर्शा हुआ है। देन अब यहाँ पर द पार्ट ऑफ द आई, तो देखेंगे आई लीड और पेब्रे इज अदर नेम ऑफ द आईलिड। एक जनरल एक आई दिखाई गई है जिसमें यह ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड ही है, ये पूरी की पूरी यहाँ पर देखिएगा ये आईलिड है, यहाँ पर ब्लिंक हो रही है या, तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बच्चों आईलिड कह सकते हैं। तो आईलिड क्या कर रही है? आईलिड यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह देख सकते हो। इसको हम आगे डिस्क्राइब करें तो आईलिड क्या है? देयर आर 2 मस्कुलर आईलिड फॉर द प्रोटेक्शन विच हैविंग लेसेज एट वन साइड। बोथ आईलिड आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, दैट इज अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। ओके बच्चों, हमारी जो आईलिड है हम इस प्रकार से बंद कर लिए, यहाँ ओपन कर ली, बंद कर ली, ओपन कर ली, बंद कर ली। ये लीड क्या है? बॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। अपर साइड में है उसे अपर आईलिड, और लोअर साइड के अंदर है उसे अपन, दैट इज कॉल्ड लोअर आईलिड। एंड आईलिड आर इमूवेबल इन दी स्नेक। स्नेक के अंदर भी आईलिड होती है बट मूवेबल नहीं है, गतिशील नहीं है। एंड आईलिड ऑफ द फिश आर दी एब्सेंट। फिशेज के अंदर बच्चों आईलिड एब्सेंट होती है। स्नेक सांप को अपन देखेंगे, सामने से देखेंगे तो किसी प्रकार की इस प्रकार की मूवमेंट उसके अंदर नहीं होती, बिल्कुल एकदम फिक्स आई उसकी दिखाई देती है ऐसे। क्यों? क्योंकि आई भी
आईलिड तो प्रेजेंट है बट इमूवेबल है, अगतिशील है वहां पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और बनता है, इसका कंपेयर करें हम स्नेक के साथ में या फिशेज के साथ में। देयर इज प्रेजेंट वन मोर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द आई, इट इज कॉल्ड निकोटिनिक मेम्ब्रेन और थर्ड आई लीड। याद रखिए बच्चों, हमारे अंदर मेमल्स के अंदर एक थर्ड आईलिड और होती है तो ट्रांसपेरेंट है और ये भी बॉल को प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड निकोटिनिक मेम्ब्रेन। हमारे अंदर वुमन के अंदर ये वेस्टिजियल है, इवोल्यूशन के अंदर भी हम इसे पढ़ते हैं, वेस्टिजियल है, इसे हम इसे क्या कहेंगे, प्लिका सेमिनुलेरिस के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड कंस्ट्रक्टेड एट वन कॉर्नर ऑफ आई बॉल, but at the time of need it may be expanded over entire eyeball for the protection. The nicotinic membrane is vestigial in human being. It is also called plica semilunaris. बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन के अंदर प्लिका सेमिलुनेरिस जो लेयर है कहां होती है, आई के अंदर होती है, और ये एक वेस्टिजियल लेयर है। या आई लेसेज आर फाउंड एट बोथ दी आईलिड, दोनों आईलिड है उसके यहाँ फ्री एंड पर आई लेसेज है वो प्रेजेंट होते हैं। देन द ग्लैंड्स ऑफ द आई, व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड फाउंड इन द आई, फॉर द क्लीनिंग एंड for lubrication, moisturizing the exposure part of an eye. The following glands are found in each eye, that is called meibomian gland, that is secrete a oily watery fluid, and also lacrimal gland found in eyeball eye, and the gland of Zeiss and gland of mole. तो ये बच्चों यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड आर फाउंड इन दी आई और सराउंडिंग ऑफ द आई बॉल, विच इज हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड माइक्रोब एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इस प्रकार से ये बॉल बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आई बॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ करने जा रहे हैं हमें, दैट इज कॉल्ड आई मसल्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ आई मसल्स फाउंड इन दी आई बॉल? For the controlling of the movement of the eyeball, upper, lower, lateral, and outer exit and inside of the eye, the large size of the eye and small size of the eyeball, dependent on the eye muscles. There are two type of main eye muscles. It is called rectus muscles and oblique muscles. The rectus muscles also divided in four type muscles. So superior rectus or inferior rectus and lateral rectus and the median rectus. There are four type of rectus muscles which is helpful for the movement of the eye, right side of the movement and the left side of the movement and the upper side of the movement and the lower side of the movement, and also helpful for the movement of the eye. Then second type of muscle is called the oblique muscles. Oblique muscles also divided in two types. First is the superior oblique and the second is the inferior oblique. There are two type of oblique muscles found in the eyeball or in between the eyeball and eye orbit. ओके बच्चों, इस बात को आप बहुत समझ गए होंगे। यहाँ पर जो आई की एक स्ट्रक्चर को बनाने का यहाँ पर फंक्शन करते हैं। यहाँ व्हेन द आई मसल्स, एक साइड की आई मसल्स है वो यहाँ शॉर्ट हो तो आई बॉल अपनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑब्लिक हो जाएगी और एक रोग, एक डिजीज, एक डिसऑर्डर डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस बाइस्मस डिसऑर्डर। तो इस प्रकार से ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द मसल्स ऑफ आईबॉल है वो किस प्रकार से यहाँ दिखाती है। देर आर प्रेजेंट 6 skeletal muscles. It is very important question. What type of muscles found in the eye orbit, in between the eye orbit and the eyeball? Visceral muscles or skeletal muscles? No, यहाँ पर only skeletal muscles. कितनी यहाँ तो नंबर कितने होते हैं? 6 यहाँ पर नंबर होते हैं, जिसमें 4 तो या रेक्टस है और 2 यहाँ पर ऑब्लिक टाइप की मसल्स है। विसरल होती तो अपने आप ये मूव करती है,
अपनी इच्छा पर मूव नहीं करती। लेकिन अब देखिए हम आई बॉल को अपनी इच्छा है लेफ्ट देखना, राइट देखना, अपर देखना, नीचे देखना और सामने आंखें निकालना, ये सब अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसका मीनिंग ये कंट्रोल कौन कर रहा है? मसल्स कंट्रोल कर रही है। और दैट टाइप ऑफ मसल्स नोन एज दी आई मसल्स। देयर आर 6 number of the skeletal muscles in the eyeball which help in the rotation of eyeball into eye orbit. Out of these 4 are rectus muscles and 2 are oblique muscles। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जा सकता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ rectus muscles and how many type of oblique muscles found in the eye orbit? तो आंसर होगा यहाँ पर there are 4 number in the rectus muscles and there are 2 in number oblique muscles are found in the eye orbit। They are also called the extraocular muscles। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बच्चों, how many extraocular muscles found in eye orbit? तो 6 number and 2 type। टाइप क्या होगा? 2 होगा। एक 2 क्यों कहा आपने कि एक तो रेक्टस है एक ओब्लिक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हम यहाँ समझ सकते हैं इस प्रकार से। अब यहां आई जो मसल्स है इसकी पोजीशन यहां पर दिखाई गई है बच्चों। ये एक बॉल है, इस बॉल को पीछे से यहां पर बाइंड करके और इस मसल्स को दिखाया गया है किस प्रकार से ये मसल्स प्रेजेंट होती है। देखिएगा ये बॉल है, बॉल के अंदर ये आइरिस है, आइरिस में ये प्यूपिल है। देखिए ये बॉल को रोटेट करवा रहा है या तो ये एक मसल्स यहां पर है, एक मसल्स यहां पर है, एक मसल्स यहां पर है और एक मसल्स यहां पर है। तो ये डिफरेंट मसल्स है। देखिएगा ये जो मसल्स है इसको बोलेंगे मीडियन रेक्टस, इसको बोलेंगे लेटरल रेक्टस, इसको सुपीरियर रेक्टस और ये मसल्स है इसको बोलेंगे हम इंफीरियर रेक्टस है। तो ये देखिए 4 जो मसल्स है 4 मसल्स है रेक्टस है। देयर आर 4 टाइप ऑफ रेक्टस मसल्स। तो कौन कौन से रेक्टस? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस एंड मीडियन रेक्टस। एंड इसके बीच में देखिएगा यहाँ जो ये लेटर ऑब्लिक टाइप की मसल्स है इंफीरियर ऑब्लिक एंड दैट टाइप ऑफ मसल्स है सुपीरियर ऑब्लिक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक है, यहाँ ये मसल्स की पोजीशन यहाँ प्रेजेंट होती है और बॉल को यहाँ पर मूवमेंट करवाने में हेल्प होती है करती है। यहाँ लेटरल रेक्टस है वो लेटरल साइड मूवमेंट करवा रही है, मीडियन रेक्टस है बॉल को बाहर निकालती है यहाँ पर एंड सुपीरियर रेक्टस अपर मूवमेंट करवा रही है, इंफीरियर रेक्टस नीचे की तरफ मूवमेंट करवा रही है। तो ये एक यहाँ पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है जो यहाँ बॉल को कंट्रोल कर रहा है। पीछे से ये सामने से फ्रंट से देखा, पीछे से इसको अपन यहाँ पर देखें तो इस प्रकार ये या ऑब्लिक जो डिफरेंट टाइप की मसल्स है वो यहाँ प्रेजेंट है। ऑब्लिक मसल्स जो रेक्टस मसल्स है ये ऑर्बिट है यहाँ पर और इसके अंदर जो नर्व एंटर करती है इसको कहते हैं मैंने यहाँ ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये सुपीरियर रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस के पास में ठीक क्या है सुपीरियर ऑब्लिक है। ये दोनों एक साथ काम करती है। फिर ये बोन है फ्रंटल बोन है, ये लेवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियरिस से एक पार्ट है इसका लिगामेंट का, ये ट्रोक्लिया लिगामेंट सिग्नल है। देन नीचे की तरफ हम देखें यहाँ पर इंफीरियर ऑब्लिक है, ये इंफीरियर रेक्टस है, ये मैक्सिला बोन है, ये लेटरल रेक्टस है। तो इस प्रकार से ये सब बॉल यहाँ मसल्स दिखाई दे रही है और ये मसल्स लगातार आई बॉल को मूवमेंट करवाती है। कैसे मूवमेंट करवाती है? तो देखिएगा इस प्रकार से ये जो आई बॉल आपके सामने ये जो मूवमेंट हो रहा है ये यहाँ ये जो मूवमेंट हो रहा है ये जो मूवमेंट है पूरा कौन करवा रहा है? ये मूवमेंट है आई मसल्स जो रेक्टस टाइप की मसल्स है या ऑब्लिक टाइप की मसल्स है वो यहाँ पर करवा रही है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट है यहाँ पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ये मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर ये क्या है? ये राउंड मूवमेंट करवा रहा है। यहाँ पर ये सब मूवमेंट कौन करवा रहा है? ये मसल्स करवा रही है। यदि ये मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं करे तो यहाँ पर ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड आपके सामने, डायग्राम आपके सामने रखा है विद द प्रैक्टिकली आपने रखा है कि किस प्रकार से ये मसल्स है इस प्रकार घुमाती है अपनी आई बॉल को। तो ये ऑब्लिक मसल्स और यहाँ रेक्टस मसल्स का ही एक योगदान होता है। इन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए बच्चों यहाँ कुछ क्रेनियल नर्व यहाँ पाई जाती है जो यहाँ कलेक्टिवली इन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो कौन सी क्रेनियल नर्व? मैंने आपको बताया था 12 पेयर क्रेनियल नर्व है जिसमें 3 पेयर क्रेनियल नर्व है, 3rd 4th एंड 6th पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व है।
तीसरी, चौथी एंड छठी, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स यहाँ पर क्रेनियल नर्व है वो इसके अंदर इसको कंट्रोल करती है। तो ऑक्यूलोमेटर क्रेनियल नर्व है, यहाँ पर एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व है यहाँ पाई जाती है, और ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व है वो इन्हें मसल्स को कंट्रोल कर रही है। तो क्या आंसर आएगा? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व है, सिक्स क्रेनियल नर्व है वो यहाँ पर इसको कंट्रोल करती है। ये क्या है बच्चों? ये क्रेनियल नर्व है जो इसको कंट्रोल कर रही है। तो आप बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरह। ये मूवमेंट कौन करवा रहा है? तो आई बोल की तो मूवमेंट मसल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ पर क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रही है। एक ग्राफ के द्वारा, एक टेबल के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि मसल्स कौन कौन सी मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन सी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है और मूवमेंट कहां करवाती है। तो मोस्ट ऑफ ऑक्यूलोमेटर इसका क्रेनियल नर्व है, उसका योगदान रहता है, ध्यान रखिए, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड मीडियन रेक्टस, देन लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। तो सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, रेक्टस की बात करें उसमें ऑक्यूलोमेटर है, इंफीरियर रेक्टस के अंदर ऑक्यूलोमेटर है, मीडियन रेक्टस के अंदर ऑक्यूलोमेटर है, और यहां ध्यान रखिएगा इंफीरियर ओब्लिक के अंदर ऑक्यूलोमेटर है, जबकि लेटरल और एक्सटर्नल रेक्टस है इसके अंदर यहां पर एब्डुसेंस है, और यहां सुपीरियर और ओब्लिक है जो है, सुपीरियर ओब्लिक है उसके अंदर क्या है? यहाँ पर ट्रोक्लियर प्रकार की नर्व पाई जाती है। और सुपीरियर रेक्टस से आई बॉल को अप करवाती है, ऊपर ले जाती है, तो इंफीरियर रेक्टस है आई बॉल को नीचे ले जाती है। तो मीडियन और इंटरनल रेक्टस है वो टुवर्ड टू नोज, दोनों आईज को अपने नोज की साइड में एक साथ लाने का काम करती है। कौन? यहाँ मीडियन और इंटरनल रेक्टस है। तो अवे फ्रॉम द नोज, नोज से यहाँ वापिस दूर ले जाने का काम कौन करती है? यहाँ पर लेटरल रेक्टस करती है। तो डाउन और इन का काम, अंदर और नीचे ले जाने का काम यहाँ पर सुपीरियर करती है। तो यहाँ पर इंफीरियर ओब्लिक है जो अप एंड आउट करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम, ऊपर ले जाने का काम है, वो करने का, ले जाने का काम है। कौन सी मसल्स करवा रही है? मूवमेंट करवाने का काम कौन सी मसल्स कर रही है? तो इंफीरियर ओब्लिक है। इस प्रकार से ये फंक्शन करने में ये हेल्पफुल है। इसके बाद में देखिएगा बच्चों कि any defect in one of these eyeball muscles, example muscles may be remain small or large, extra large, then required cause the stress biasmus defect। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस बाइसमस, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेस बाइसमस डिफेक्ट क्या है? इसका मीनिंग हमारी जो मसल्स है उसका साइज फिक्स है जिसके ऊपर बॉल टिकी हुई है, यदि साइज छोटा हो जाए, यदि साइज बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक रोग हो जाएगा जिसे भेंगापन, तिरछा देखेंगे, टेढ़ा देखेंगे, इसे स्ट्रेस बाइसमस या स्क्वेंट आई के नाम से भी जानते हैं। इन दिस डिफेक्ट आई बॉल रिमेन इंक्लाइंड टू एनी ऑफ दी वन साइड। एक साइड में यहाँ पर ये आई बॉल है वो नीचे धंसी रहती है। तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर हमें यहाँ बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनी। स्ट्रेस बाइसमस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। तो क्वेश्चन इसका पूछ सकते हैं यहाँ बच्चों। यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आई ऑर्बिट एंड आई बॉल हमने यहाँ पर बात की, आई की ग्लैंड की बात की यहाँ पर। ये आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड एंड यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर नॉलेज। तो ये एक बहुत ही आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में यह नॉलेज आपके काम आएगा। और ये मैं होप कर सकता हूं कि अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बहुत इजी तरीके से आंसर दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच।